thanks to Ayush Foundation and Switch On Foundation that you felt I can speak on this topic. Actually, everybody can speak on this topic. We all understand environment, we all understand pollution, we all understand what is our role in protecting, conserving our country, our environment. We all understand this. But very strangely, हम इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं. अभी मिल्टन जी जो चीज बोले हैं, शायद हम सभी को ये पता है, हम लोग सब जानते हैं ये सब, पर करें क्यों? क्या जरूरत है? आज देख लीजिए कितने लोग आए हैं इस प्रोग्राम में, उससे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लोगों को दिलचस्पी नहीं है. Switch On Foundation and Ayush Foundation has thought of a wonderful thing. They have thought that this land where we live, this earth, this planet needs to be saved, needs to be conserved, needs to be protected. So once again, a very good evening to all of you, and I am honored to be speaking about environment. I was given two topics, one pollution and the other waste management. And by now we all know that we are already going through the after effects, the consequences, the result of pollution. And that is the increasing global temperature. Today we are sitting here, we are feeling it. Right from the month of March, we have been going through high temperature rise. The schools had to cut down their timing. हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हम लोग we are the worst. We are the ones who are worst affected because of that. Sitting in AC rooms, decisions are taken. ACs are almost everywhere. AC has become a status symbol. But हमें ये नहीं समझ में आता है that the CFCs, the coolants, are creating so much of trouble in the environment. We do not understand that. Hardly do we realize it. Within the closed doors, we sit in meeting halls. I have written because there are so many points. I had to do a lot of homework because points तो बहुत हैं, जानते तो बहुत कुछ है, बोल तो सकते हैं, लेकिन इस तरह के गैदरिंग में जहाँ हर किसी को एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आता है, समझ आता है और कुछ करना चाहते हैं, वहाँ बोलने के लिए आई थिंक वी मस्ट मेक अ लेसन प्लान. टीचर रह चुकी हूँ इतने दिन से, तो लेसन प्लान का आदत हो गया है. तो then it is easy to talk about pollution when you sit in an AC hall, when you sit in a meeting hall, when you talk about things just because you have to talk about it. लेकिन जब हमें कुछ करने का टाइम आता है, तो we don't think about it. We have no points about it. हमारे पास कुछ नहीं है, substance नहीं है, matter नहीं है. बोलना इतना आसान है, हर कोई बोलता है, सुनने वाले का कोई सुनता नहीं और कुछ करते भी नहीं. You will find people are spitting here and there, throwing up. By the way, right in front of me I got an example. फ्रूटी वाला ये जो आपको सबको फ्रूटी का मिला, कहाँ फेंकेंगे? Most places में आप देखेंगे they just throw it. और कोई चुपके से चेयर के नीचे. हम लोग सब कोई करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. एक डस्टबिन होता है, वहाँ फेंकना चाहिए. डिस्पोजेबल ग्लासेस मिलते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस को फेंक देते हैं. तो we are not using our brain, we are not thinking about the environment in which we are living. To become modern, it is a necessity to urbanize, and it is a necessity to develop, to advance, to industrialize. At the cost of what? At the cost of our land,
at the cost of our trees. We are cutting the trees and we are erecting high-rise buildings. We are cutting the trees and we are making malls. We are cutting the trees and we are making roads. क्योंकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमें डेवलपमेंट करना है. We are living in 2023 for what? Modernization चाहिए. तो modernization means urbanization and urbanization means cutting plants. War against greenery. We are warring with the green. We are fighting with the green. धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं. कुछ ही दिन पहले आप लोग पेपर में पढ़े होंगे. I am not going into political issues, but you must have read it. कि when the commoners, the common public went and stopped the cutting of trees, the officers went and cut them quietly at night. Why? Because वहाँ mines बनाना था. Today the condition is such that in order to see or enjoy the countryside, आपको रिसोर्ट जाना पड़ता है. क्यों? बैम्बू हाउसेस देखने के लिए. बैम्बू हाउसेस है नहीं, मड हाउसेस है नहीं, आपको रिसोर्ट में जाना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है. बिकॉज तभी आपको पता चलेगा. शायद एक दिन आएगा बहुत जल्द, बच्चों को ग्रास के बारे में नहीं पता चलेगा. घास, वो पूछेंगे घास कहाँ है, घास किसे कहते हैं. Children who might teach, they even ask the names of some plants जो अब नहीं मिलते हैं, नहीं दिखते हैं. Some birds, sparrows कम होता जा रहा है, नहीं है. Why this is happening? Because of us, because of this industrialization, because of the cutting of the trees. शहरों का शहरीकरण ठीक है, चलिए होता है, समझ में आता है. गाँव का भी शहरीकरण कर डाले हम लोग, गाँव का भी पेड़ पौधा काट डाले, और गाँव के लोग भी दौड़े दौड़े सब शहर में आ रहे हैं बिकॉज उनको नौकरी चाहिए, उनको पैसा चाहिए. But still, you know, we haven't gone very far. We haven't lost anything. We still have time. We have to do something. We have to find out कि क्या करने से ये कम हो सकता है, क्या करने से इसका इलाज निकल सकता है. साइकिल्स यूज कर सकते हैं. सबको पता है साइकिल से नो पोल्यूशन. I have seen some people having lot of money buying very costly cycles. मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, साइकिलिंग करके जाते हैं, पैदल आते हैं. ये हो गया साइकिल का यूज. बट हम साइकिल को इसलिए नहीं यूज कर रहे कि वो सब्स्टिट्यूट बन जाए टू व्हीलर्स का. इसलिए नहीं यूज कर रहे कि वो सब्स्टिट्यूट बन जाए कार्स का, फोर व्हीलर्स का. हम कारपूल नहीं करते हैं. आपको पता होगा क्या होता है कारपूल. पूलिंग द कार मींस एक कार में बहुत लोग को बैठा के तब ले जाना. अगर आपका डेस्टिनेशन कॉमन है, अगर आपको सेम जगह जाना है तो एक कार में सब लोग जा सकते हैं. बट कारपूल्स नहीं होते हैं. स्कूल्स में एक गाड़ी में एक बच्चा आता है, एक एसयूवी में एक बच्चा आता है. एक चलाएगा, एक शुरू करेगा, दूसरा भी वही करेगा, क्योंकि तब दिखावा आ जाता है. सेफ्टी सिक्योरिटी का दावा करते हैं. लेकिन कारपूल्स करने से ये ट्रैफिक जैम्स घटेगा. ट्रैफिक जैम, one of the major issues of traffic jam in front of the schools during the school hours, you must have seen, is because इतने सारे कार, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, बसेस जैम पैक हो जाता है. कारपूल्स हम नहीं यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम वापस हम लोग भी तो गए हैं. बसेस में नहीं जाते हैं बच्चे आजकल. एक कॉलोनी से, एक फ्लैट से, एक अपार्टमेंट से, एक एक फ्लैट से एक एक गाड़ी निकलती है, एक एक बच्चे को लेने. आप लोग सब लोग देखे होंगे सब चीज, बट कोई नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं. अब आ जाइए नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन का तो ऐसे किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है. छोटा छोटा गली है, उसमें बिग बिग अपार्टमेंट्स है. The cars and the bikes, they run at a high speed, blowing their horns and harming the people around. बच्चे, aged हैं, सबको हार्म करता है. और ये साइलेंट किलर है, याद रखिएगा. नॉइज पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है.
आपको नहीं समझ में आता है, बट आपको बहुत हार्म कर देता है। यू कैन बिकम डेफ, यू कैन हैव माइग्रेन अटैक्स, यू कैन हैव हाइपरटेंशन, हाई बीपी। लेकिन हम लोग उस समय लगता है कि कोई हाईवे में चल रहा है, एक्सप्रेस वे में चल रहा है, गली में नहीं, हाई स्पीड में गाड़ी निकल गई और जोर से हॉर्न बजाते हुए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप चुप नहीं करा सकते, आप बोल नहीं सकते, लड़ाई हो जाएगी। सब त्योहार में मना किया जाता है, फिर भी रात 10 बजे के बाद जोर जोर से माइक बजता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मैं जैसे आज यहाँ पे स्पीकर बज रहा है, बाहर तक भी आवाज नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें सुनना है, बाहर के लोगों को नहीं सुनाना है। तो आप इतना बड़ा माइक क्यों लगा देते हैं बाहर? सबको गाना सुनना जरूरी है क्या? एग्जाम टाइम में गाना बज रहा है, इतना जोर जोर से गाना बजता है और एक एक हफ्ता गाना बजता है। रात 12 बजे 1 बजे तक लगता है अब कब बंद हुआ? क्या मैं फोन करूं, मैं पुलिस को बोलूं? लेकिन आप बोल दीजिए तो आप दुश्मन बन जाते हैं सबका। आपको करना ही है ऐसा काम, क्योंकि वो भी तो सबके सामने आएगा। पुलिस will come in your house and will ask you are the one who reported, किसके अगेंस्ट रिपोर्ट किए थे, तो आप सबके पूरा मोहल्ले में आप सबका दुश्मन बन जाइएगा। तो आपको नहीं करना है ये काम। तो हम आता तो बहुत कुछ है, मन तो करता है बहुत कुछ करने का, पर हम कर नहीं सकते, हाथ पैर बंद गया है। We are just keeping quiet and watching things happening, और हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। आवश्यकता है तो अवेयरनेस, सबको समझाना है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, ये जरूरत है। ये खाली सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ कर दिखाना है। और वो इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन उसका होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट मेजर्स होना चाहिए, पनिशेबल एक्ट होना चाहिए, तब जाके बंद होगा। जब तक उसका कोई फाइन नहीं होगा, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। डीजे बज रहा है, विसर्जन, मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, कई दिनों से चल रहा है रात के। और आप लोगों को अब आजकल तो ये भी हो गया है, सभी सारा विसर्जन में ऐसा होता है कि 3 बजे से लाइन ऑफ रहेगा, रात के 11 बजे तक। वाई? बिकॉज द आइडल्स विल बी इमर्स्ड इन द वाटर एंड देयर विल बी लॉट ऑफ डांसिंग ऑन द वे। So the government is also not, even everybody has failed to do something. Lusaka, Zambia में there is a zoo, और उस zoo में there is one cage. उस particular cage में कोई animal नहीं है. You can Google search and find out. कोई animal नहीं है, उसमें बाहर लिखा हुआ है the world's most dangerous animal, और सामने एक मिरर लगा हुआ है। मतलब आप जाके खड़े होते हैं उसके सामने, आप अपना इमेज देखते हैं। यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। कोई एनिमल डेंजरस नहीं है, हम लोग से तो कम, हम लोग सबसे डेंजरस है। फाइनली let us come to garbage. I have talked a lot. Let us come to garbage. One thing is for sure, ये किस गवर्नमेंट का बोलिए या किसी गवर्नमेंट का, नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एक फायदा हुआ है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये एंथम बन गया है, हर किसी को पता ये गाना, और लोग बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये गाना सुनना, किसने गाया, किसने लिरिक दिया, किसने म्यूजिक कंपोज किया, सब पता है सबको। लेकिन कचरा कितना दिन बाहर निकालता है। द प्लेस वेयर आई लिव इन हिस्ट्री पार्क, लेट मी टेल यू, मैं, मेरे बगल वाला घर और फ्लैट, बाकी लोग मना कर दिए, बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जाके रोड पे फेंकेंगे, है ना, रोड है ना, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वहां फेंकेंगे, क्योंकि आपको एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। वो नॉमिनल चार्ज भी देने के लिए तैयार नहीं है लोग। पैकेट उठाते हैं सुबह शाम, कभी मेड सर्वेंट लेके जाती है, कभी घर के जो मास्टर है, मैन द ओनर ऑफ द हाउस, वो लेके जाते हैं पैकेट, रास्ते में गिराते गिराते जाते हैं और फेंक देते हैं रास्ते के उस पार। मेरा घर साफ, वो रास्ता वो तो मेरा नहीं है ना, तो वो गंदा हो जाए तो क्या होगा। तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी हमें कुछ करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ करना होगा।
सीवेज ड्रेनेज के लिए कुछ करना होगा। नाली तो बन रहा है, मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट धनबाद इज फेसिंग, ये वेस्ट डिस्पोज कहाँ होगा? कोई जगह नहीं मिल रहा है। जहां भी फेंका जा रहा है वहां के लोग, आसपास के लोग मना कर रहे हैं। और इतना प्रोडक्शन है वेस्टेज का, इतना प्रोडक्शन है, और ये जो गंदगी का अंबार चारों तरफ, इतना प्रोडक्शन है कि दे पीपल आर, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू, द म्युनिसिपैलिटी इज नॉट एबल टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अनटिल एंड अनलेस हम साथ में काम करें। कोई काम अकेले कोई नहीं कर सकता है, साथ देना होगा, हम लोग को साथ देना होगा। हम सिर्फ लोगों का हम ये बोलते कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये गवर्नमेंट खराब है, वो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया, ये बोलने से नहीं चलेगा, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। और हर एक आदमी अगर इस चीज को करे, इसको पालन करे, इसको समझे, तो वो कचरा का भी निवारण होगा, उसका भी डिस्पोजल होगा। आपको समझना होगा, आप लैंडफिल्स बना सकते हैं, आप घर पे जो सूखा पत्ता, सब्जी, छिलका वगैरह, वो आप घर पे मैन्योर जैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं। फेंकने में बड़ा मजा आता है, उठाओ फेंको। I have gone on a trip to Molyneux. नाम जानते हो क्या आप लोग? Molyneux. Molyneux is Asia's cleanest village. फार नॉर्थ ईस्ट में है, शायद मेघालय में। Molyneux. Very 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 neat. It's a गांव, लेकिन it is the Asia's cleanest village. मेरे सामने हम लोग जिस हायर्ड कार, रेंटेड कार में जा रहे थे, उसके सामने देखो बस, a small bus, a 20-seater bus. तो वो लोग, the driver in my car told me कि देखिए ये लोग का behavior. They were in the car, in the bus. So many people were in the bus. Somebody vomited. a बच्चा vomited, उल्टी किया, पैकेट में वॉमिट किया, और हम लोग पीछे पीछे हम लोग आ गए, वो खिड़की से बाहर निकला। क्लीनेस्ट विलेज। देखिए हम लोग साफ करते हैं, देखिए ये लोग क्या करते हैं। तो टूरिस्ट को समझना होगा, आम जनता को समझना होगा। आप अपना घर साफ झाड़ू लगा के एकदम चक करके कोई फायदा नहीं है। आप घर को तो साफ कर रहे हैं, पोछा पे पोछा डलवा, लेकिन घर का सारा कूड़ा कचरा करकट बाहर, ये बंद करना होगा। इसको पनिशेबल एक्ट मानना होगा, और इसको बहुत स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा। पकड़े जाने पे फाइन करना होगा, सब चीज का फाइन होता है, इसका नहीं फाइन होता है। ये होने से तब जाकर कुछ होगा। I think I have talked a lot, immense, and you must be getting bored of what I am saying. Are you getting bored? How many of you are getting bored? No, not bored. Now you all know the 3 R's. Do you know the 3 R's? Reuse, recycle, reduce. So we have to do that. We have to reuse things. We have to reduce the use of certain things that are harming the environment. And what are they? The polythene bags. मिल्टन जी अभी बोले, हम लोग तो, मेरे पापा को तो हम देखते थैली लेके जाते हुए, लेकिन अभी कुछ लेके मत चलो। वहां से ऊपर से क्या, अगर कोई नहीं देता है कि प्लास्टिक देना मना है, पॉलीथीन पैकेट नहीं देना है, होगा तुम्हारे पास होगा, अरे लाओ नहीं, कचरा फेंकने में काम आता है, दे दो, तो पॉलीथीन पैकेट मांग के लेके जाते हैं। माइक्रोन किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, वो सब हिब्रू है, लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, वो लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आता है। हमें ये समझ में आता है कि पैकेट, सामान खरीदे पैकेट दो, सामान के साथ पैकेट फ्री, एक नहीं और 2-4 डाल दो। क्या भैया पैकेट भी लेते, कुछ खर्चा तो करना चाहिए आपको। यहाँ तक कि कपड़े की दुकान में आपको अच्छा वाला पैकेट मिल जाए और एक पैकेट ले लो, क्योंकि ना ये हमको गिफ्ट करना है, तो 2-3 पैकेट और डाल दीजिएगा। पेपर पैकेट इज कॉस्टली, पॉलीथीन पैकेट इज इजी and very nice to look at also, to see them and to gift them and to keep them, very convenient. So last में I think there are some people who have to speak a lot, so I
think all of us need to remember one thing, and that one thing is the words by Mr. Lester Brown. ये बहुत अच्छा words है कि we have not inherited this earth from our forefathers, but we have borrowed it from our children. इस लाइन को समझिए, कितना अच्छा लाइन है। ये ना हमें अपना forefathers से नहीं मिला, पुरखों से नहीं मिला, ये अर्थ हम अपने आने वाले पीढ़ी से कर्ज पे लिए हैं, लीज पे लिए हैं। और जब आप कोई चीज लीज पे लेते हैं तो फुल रिपेयरिंग लीज होता है। जब हम देंगे वापस तो रिपेयर करके बच्चों को वापस देंगे, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखे होंगे इसमें लिखा है स्विच ऑन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खुद जियो, डेवलप करो, आने वाला पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे डेवलपमेंट करो। कि हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया बट आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया, दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज सस्टेनेबल। तो when we have taken everything from the children who are yet to be born, तो we have a responsibility कि हम जैसे हमको ये अर्थ मिला था, हम उसी सेम शेप में, टेम्परेचर में उसको वापस। Thank you so much.